Jai Hind dear students, I am Dr. Preeti Mittal and we are taking the chapter Light. हमने अभी तक लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं along with the numericals. अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसका पाथवे हो जाता है चेंज. वो लाइट रे हो जाती है बेंड. And this bending of light ray when it enters from one medium to another is known as refraction of light. Refraction होता क्यों है? लाइट बेंड क्यों होती है? क्यों वो लाइट रे अपने ही पाथवे पे नहीं चल पाती? लाइट के बेंड होने का रीजन है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उस मीडियम में आने के बाद उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से उसका पाथवे भी चेंज हो जाता है एंड दैट लीड्स टू रिफ्रैक्शन. बिफोर अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट दिस टॉपिक, कुछ एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस देखते हैं रिफ्रैक्शन के, ताकि हमें टॉपिक इजीली समझ में आ जाए. You can see the bending of this pencil at the interface of water and air. This is because of refraction of light. Now I'll show you something very interesting. I've taken two bowls and placed a coin in each of them. Now I'll start moving backward to a point where the coins become just invisible. Now the two coins are not visible. Now I'll pour some water in one of the bowls. And you can see that the bowl in which water is poured, the coin again becomes visible. This is because of refraction of light. The actual depth of the coin is more and the apparent depth means what's visible to us. So apparent depth is less as compared to the actual depth because of refraction of light. This is a beam of light going straight. Now I am placing a glass slab in its pathway and you can see that the light ray is bending. So this is the incident ray, this is the refracted ray, and the light emerging out, this is the emergent ray. So you can see that very beautifully, incident ray, refracted ray, and the emergent ray. This is showing refraction of light. And the emergent ray and the incident ray, if extended forward, they are parallel to each other. So देखा बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से कैसे वो कॉइन हमें रेज दिखाई दे रहा था. दैट इज शोइंग कि apparent height is less than the actual height of the coin. तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमेशा हमें हाइट कम नजर आती है उसकी एक्चुअल हाइट के कंपैरिजन में. नाउ लेट्स सी दैट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेज दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल to the interface and the refracted ray all are in the same plane. मतलब हमें इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई थर्ड एक्सिस की जरूरत नहीं है. नाउ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का एक नाम भी है एंड दैट इज नोन एज Snell's law. According to second law of refraction, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always a constant for a particular pair of medium and for a particular color of light, and this constant is known as refractive index. ठीक है, तो अब इस लॉ को समझते हैं. ये लॉ हमें कह क्या रहा है? The angle between the normal and the incident ray is known as angle of incidence, और angle between normal and refracted ray को कहते हैं angle of refraction. Angle of incidence and angle of refraction. Now, अगर हम इनके साइन का रेशियो लें किसी भी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए, पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम मतलब फॉर एग्जांपल एयर से जब भी लाइट ग्लास में जाएगी और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी चेंज कर लें, उसके साथ साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता जाएगा. बट हम दोनों के साइन का अगर रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो हमेशा आएगा सेम. कांस्टेंट मतलब सेम. अगर ये वैल्यू 1.5 आ रही है तो हमेशा ये वैल्यू 1.5 ही आएगी, चाहे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी चेंज कर लें, except for one condition that the angle of incidence should be more than 0 degree and less than 90 degree. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए. तो ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज स्नेल्स लॉ विल होल्ड गुड. तब तक ये स्नेल्स लॉ सही है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो
रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट की वैल्यू को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि किसी मीडियम में पहुंचने के बाद लाइट की स्पीड उसमें कितनी कम होने वाली है। अगर हम दो मीडियम को कंपेयर करें, जैसे कि ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और डायमंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी एज कंपेयर टू ग्लास। इसी तरह से डायमंड में एंटर होने के बाद लाइट की बेंडिंग भी ज्यादा होगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि लाइट की बेंडिंग कितनी ज्यादा होने वाली है। मीडियम अगर ज्यादा डेंस है तो बेंडिंग भी ज्यादा, और ये आपको ये भी बताता है कि स्पीड लाइट की कितनी कम होने वाली है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट की स्पीड उस मीडियम में उतनी ही कम हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। इस कांस्टेंट की वैल्यू तब तक ही कांस्टेंट है जबकि हमारे मीडियम कांस्टेंट है, सेम है। फॉर एग्जांपल, एयर से ग्लास में अगर लाइट जा रही है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू एक आ रही है, बट अगर हमने इस ग्लास स्लैब को अगर वाटर में डाल दिया और वाटर से लाइट ग्लास में जाएगी तो इस जो रेशियो है इसका वैल्यू अलग आएगा। तो दिस रेशियो इज अ कांस्टेंट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। ये कांस्टेंट की वैल्यू, ये रेशियो जो है इन दोनों एंगल्स का, दैट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द कलर ऑफ लाइट। रेड लाइट के लिए इस रेशियो की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, इन दोनों के लिए इस रेशियो की वैल्यू अलग रहेगी। तो ये कांस्टेंट कब तक कांस्टेंट है? जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, फॉर अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। एक बात और, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है जीरो, मतलब आप किसी लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो नॉर्मली, तो रिफ्रैक्शन वुडंट बी विजिबल। अगर आप नॉर्मली लाइट को इंसिडेंट करोगे तो लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो बी जीरो। तो इसलिए मैंने कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो ये रेशियो है, उसका जो कांस्टेंट है, वो तब तक ही है जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा और फिर ये लाइट रे बेंडिंग शो नहीं करेगी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। Let's see the refraction of light. So you can see this is the incident ray, and inside the water the light is bending, that is a refracted ray. But now when the angle of incidence is zero, then there is no refraction. The angle of refraction is also zero. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज दिस: रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 with respect to medium 1 is equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. Still looks difficult? I'll make it very easy for you. Suppose light ray कहाँ से जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। एयर से लाइट रे कहाँ जा रही है? ग्लास में एंटर हो रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका कैलकुलेट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air। हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air। with respect to air मतलब लाइट एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को रिप्रेजेंट करते हैं c से। एक्चुअली द c रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड लाइट की मैक्सिमम होती है और इसकी वैल्यू होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एयर में एंटर होने के बाद ये स्पीड थोड़ी सी कम होती है, बट वैल्यू इतना कम डिफरेंस है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए लाइट की स्पीड को एयर में भी क्या कंसीडर करते हैं? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू velocity of light in air divided by velocity of light in glass, represented by c upon velocity of light in glass। अगर आप c से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं speed of light in air upon speed of light in glass। ओके, फाइन। अब इस फॉर्मूले को याद करने के लिए भी एक इजी ट्रिक बता दूं। आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं और वो आपके घर पर आए तो उसे ऊपर बिठाते हैं या नीचे? सो इस क्वेश्चन में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब हम रिस्पेक्ट किसको दे रहे हैं? एयर को, क्योंकि एयर में से लाइट आई है, बाहर से कोई मेहमान आया है,
तो जिसमें से लाइट आई है उसमें जो उसकी स्पीड है लाइट की उसको लिखेंगे ऊपर, जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको बिठाएंगे ऊपर और खुद बैठ जाएंगे नीचे। तो ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट को लिखेंगे नीचे, और एयर में से लाइट आ रही है तो एयर में जो स्पीड है लाइट की दैट वी विल बी राइटिंग एज न्यूमरेटर। ओके, इजी टू रिमेंबर। सिमिलरली अगर लाइट रे वाटर में से ग्लास में आ रही है, मींस एयर की जगह वाटर में से लाइट अगर आ रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, उसके अंदर आपने एक ग्लास स्लैब प्लेस कर लिया, तो अब लाइट कहाँ से आएगी? वाटर से ग्लास में आएगी। तो हम फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नाउ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, क्योंकि वाटर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको ऊपर बिठा देते हैं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर पाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एंड फॉर न्यूमेरिकल्स इन 3 वैल्यूज में से आपके क्वेश्चंस में कोई भी 2 वैल्यूज गिवन होंगे एंड द थर्ड वैल्यू यू हैव टू फाइंड। बट अगर एक मीडियम एयर है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नहीं गिवन होगा, वो आपको याद रखना है, एंड दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एक बात और बच्चों, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा मतलब वो मीडियम ऑप्टिकली उतना ही डेंसर मीडियम है। तो ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड लाइट की कम होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम में स्पीड लाइट की ज्यादा होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो इन दोनों मीडियम में से अगर हम कंपेयर करें, जैसे लाइट रे अगर एयर में से ग्लास में एंटर हुई है तो एयर इज अ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एयर एक रेयरर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है। जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स अ नॉर्मल। अगर ये सीधी जाती तो ये ऐसे चली जाती, बट क्योंकि वो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है उसका पाथवे चेंज होने वाला है और वो एंटर ग्लास में एंटर करने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इफ अ लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होने की मतलब क्या है? सपोज अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना रह गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सपोज रह गया आपका 30 डिग्री, क्योंकि लाइट रे किस तरफ बेंड हो गई है? नॉर्मल की तरफ। इसी तरह से जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से वो दूर हो जाएगी। तो अगर सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए था 30 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा सेकेंड पेयर ऑफ मीडियम के लिए? 40 डिग्री। एक बात और बच्चों, जब हम रेयर मीडियम डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो ये जो डेंसिटी है दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि वाटर और ऑयल में दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंसर है, तो आपको पता है ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करता है। आप ऑयल को अगर पानी में डालेंगे तो पानी नीचे रहेगा और ऑयल ऊपर रहेगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। बट अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं तो उसमें हम कंसिडर करेंगे कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में कम है, और अगर हम ग्लास और ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी को कंपेयर करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल की ज्यादा है जबकि मास डेंसिटी ऑयल की कम है। तो मास डेंसिटी एंड ये ऑप्टिकल डेंसिटी ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग टर्म है, दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना। ओके, तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड लाइट की कम हो जाए। तो अगर हम एयर से लाइट को ग्लास में डालेंगे तो लाइट की स्पीड ग्लास में एंटर होने के बाद हो जाएगी कम, इसलिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन है? दैट इज ग्लास। ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी भी दे देंगे। ओके, सो नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। सो नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। पॉज द वीडियो, अपने आप ट्राई करो करने की, एंड देन चेक whether you have got the answer correct or not. So the first question is, the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. 2 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the refractive index of glass with respect to air. Calculate the refractive index of glass with respect to air. Now try to do this question by yourself. Then pause the video and check your answer कि आपका आंसर सेम है या नहीं. So let me do that now. Refractive index of glass with respect to air. तो
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसकी वेलोसिटी को लिखेंगे ऊपर एज न्यूमरेटर. नाउ पुटिंग द वैल्यूज 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 2 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, 10 to the power 8 and 10 to the power 8 cancel हो जाएंगे. 3 divided by 2 that will be 1.5. Now students बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल नॉट बी हैविंग एनी यूनिट, क्योंकि ऊपर भी मीटर पर सेकंड है नीचे भी मीटर पर सेकंड है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दैट इज व्हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल नॉट बी हैविंग एनी यूनिट. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. जब भी दोनों मीडियम में से एक मीडियम एयर होता है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में विथ रिस्पेक्ट टू छोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर में से लाइट जा रही है ग्लास में, तो जब मैंने सिंपली कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब वन ऑफ द मीडियम इज एयर, that kind of refractive index is known as absolute refractive index. Okay, so whenever one of the medium is air, then the refractive index जो हम calculate करते हैं उसको कहा जाता है absolute refractive index. Okay, now let's do question number 2. The refractive index of diamond is 2.5. Actually it is 2.42, but we are just changing the value to make our calculations very easy. So the refractive index of diamond is 2.5. Calculate the speed of light in diamond. I hope you have done it. So now let's check your answer. You know that refractive index of diamond means refractive index of diamond with respect to air. ठीक है, with respect to air. And so क्योंकि air के respect दे रहे हैं इसलिए velocity of light in air को लिखेंगे ऊपर divided by velocity of light in diamond. Okay, इन values में से अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था दो values given होंगी, तो speed of light in air that you have to remember by yourself only. तो it's given refractive index of diamond is 2.5, that is equal to speed of light in air, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by velocity of light in diamond that you have to find out. Okay, calculations करेंगे. velocity of light in diamond ये हमने cross multiply करेंगे, velocity of diamond ऊपर चला जाएगा, 2.5 नीचे आ जाएगा, so that is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 2.5. ये point हटाने के लिए हम इसको पॉइंट को हटाएंगे, so it will become 30. न्यूमरेटर में एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा, so 30 into 10 to the power 8 meter per second divided by 25. 5 times is 25, 6 times is 30, 6 divided by 5 will give you 1.2 into 10 to the power 8 meter per second. So the velocity of light in diamond is 1.2 into 10 to the power 8 meter per second. Now you can compare your answers also. Velocity of light in vacuum is maximum and refractive index of vacuum is taken as 1, that is minimum. अब velocity of light in diamond ग्लास कितनी है 2 into 10 to the power 8 और उसका refractive index कितना है 1.5. डायमंड का refractive index और भी ज्यादा है 2.5, तो उसमें लाइट की velocity और भी कम हो गई. So you can make out कि refractive index जितना ज्यादा, velocity of light in that particular medium will be less. Now practice this question. The velocity of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second and the velocity of light in water is 2.5 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the refractive index of glass with respect to water. Using the same formula, we can do that. Refractive index of glass with respect to water is equal to speed of light in water, क्योंकि water को respect दे रहे हैं, divided by speed of light in glass. So putting the values, in water it's 2.5 into 10 to the power 8 meter per second divided by 2 into 10 to the power 8 meter per second. Meter per second cancels out, 10 to the power 8 cancels out. 2.5 divided by 2 can be written as 25 divided by 20. 5 times is 25, 4 times is 20, 5 upon 4 is 1.25. So the refractive index of glass with respect to water comes out to be 1.25. Okay, that is 1.25. It will not be having any unit. Now, I would like to tell you something extra that's not given in NCERT book, but that might come in your exam. So, shall we talk about something extra? One more formula is there. Okay, so let me tell you that. Sometimes in your exam, you could be given a question that refractive index of, say, glass is 1.5 and the refractive index of water is 1.3.
Calculate the refractive index of glass with respect to water. अब आपको दोनों में स्पीड गिवन नहीं है, दो मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे दिया और आपसे पूछा कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? ओके, सो हियर कम्स अनदर फॉर्मूला। जब दोनों वैल्यूज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे मीडियम निकालना है, देन द फॉर्मूला विल बी refractive index of glass divided by absolute refractive index of water. This will give you the refractive index of glass with respect to water. Okay, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो refractive index of glass with respect to refractive index of glass with respect to water. अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है उसे ऊपर रखते हैं, पर इसमें तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ऊपर रख दिया, जबकि हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन डिफरेंट है और इस फॉर्मूले को याद करने का भी तरीका बताऊंगी। जब आप छोटे थे तो सारे टीचर्स का सबका बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो जब आपने वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था तब आप बहुत छोटे थे, तब आप रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में आपने जिसको रिस्पेक्ट दिया उसको बिठा दिया ऊपर। बट जब तक आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा तब तक हो गए हो आप थोड़े बड़े, 10th स्टैंडर्ड में आ गए, आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया है, अब तो खुद ऊपर बैठे हो, जिसको रिस्पेक्ट देना है उसको बिठा दो नीचे। Okay, that is just a way to remember that. So by this formula you can calculate this type of numericals if that comes in your exams. That's all for the concept of refractive index. In the next video we will see about spherical lenses, concave and convex lenses के बारे में हम पढ़ेंगे next video में. But by then just keep on sharing the video if you like the content with your friends and help me to spread knowledge. Subscribe to my channel if you haven't already. That's all for today. Good day everyone.